So today I want to talk to you about the 3 dimensions of wisdom. और आज मैं आपको बताना चाहता हूं कि बुद्धि के 3 अलग-अलग आयाम। Look at somebody and say the 3 dimensions of wisdom. और किसी को देखकर कहिए कि बुद्धि के 3 आयाम। Come on, one more time louder. 3 dimensions of wisdom. बुद्धि के 3 आयाम हैं। Wisdom is one of the most sought after virtues in scripture. और इतने सद्गुणों में से सबसे ज्यादा सद्गुण जाना पहचाना गया है वचन में, वो है बुद्धि। Kings prayed for it. और राजाओं ने बुद्धि के लिए प्रार्थना की। When God appeared to Solomon, और जब परमेश्वर सुलेमान के सामने प्रकट he हुए, didn't ask for wealth, he did not ask for health, he asked for wisdom. तो सुलेमान ने पैसे की, धन दौलत की या सेहत की मांग नहीं की, उसने बुद्धि की मांग So की। kings prayed for it. तो राजाओं ने बुद्धि प्राप्त करने की मांग की। The prophets spoke about it. जो भविष्यवक्ता है उन्होंने बुद्धि के बारे में बहुत कुछ कहा। Prophets often spoke about the wisdom. और अधिकतर जो भविष्यवक्ता है बाइबल में वो बुद्धि के बारे में बातें करते थे। And apostles, they taught through this wisdom. और प्रेरितों ने जब भी वचन की शिक्षा दी, इसी बुद्धि के जरिए दी। And if there was one man on earth who embodied the wisdom, the entire wisdom, that was Jesus Christ himself. और अगर एक ऐसा व्यक्ति है इस धरती पर जिसने परिपूर्ण परमेश्वर की बुद्धि को प्रकट किया है, वो स्वयं यीशु मसीह I है। want you to listen carefully right मैं now. चाहता हूँ आप ध्यान से वचन You see, सुनिए। whenever the word of God is being preached, और जब भी प्रभु का वचन का प्रचार किया जाता है, what is being preached, that anointing is very close to you. और जिस विषय पर प्रचार किया जाता है, उस विषय का जो अभिषेक है वो आपके बहुत निकट होता है। I want to make it one thing clear this morning. और आज सुबह एक बात मैं आपको स्पष्ट बताना Write this चाहता हूँ। down. लिख All लीजिए। wisdom is not the same. और हर तरह का जो बुद्धि है वो एक समान नहीं होता All है। wisdom is not the same. हर तरह की जो बुद्धि है वो एक समान नहीं होती। What do you mean, Pastor Michael? पास्टर माइकल, आपका कहने का क्या मतलब है? You see, some wisdom, it elevates your soul towards God. और कुछ ऐसी बुद्धि है जो आपकी आत्मा को परमेश्वर के प्रति करीब लेकर जाता है। While certain other forms of wisdom, पर कुछ अलग तरीके की ऐसी बुद्धि है they slowly drift your heart away from the things of God. जो धीरे धीरे परमेश्वर की बातों से आपके मन को दूर ले You see, जाएगा। this is what is happening in Europe. और आज यूरोप में यही हो रहा है। You see, that was the place which was once a hub for Christianity. और वो एक ऐसी जगह थी जो मसीहों का मुख्य स्थान था। If you go to Europe, you find a lot of learned people. अगर आप यूरोप में जाएं तो आपको बहुत सारे विद्वान लोग मिलेंगे। I'm telling you. मैं आपसे कहना When चाहता I हूँ, was in the UK, when I was in Ireland, you ask anybody, what are you doing? He says, I'm doing my PhD. What are you doing? I'm doing my research. You see, you have these learned people over there. आप जब यूके और आयरलैंड या यूरोप के किसी भी इलाके में अगर आप जाएंगे तो वहाँ पे बहुत ज्यादा पढ़े लिखे और विद्वान लोग आप But at पाएंगे। the same time, पर उसी समय में you will find the most godless people in those places. उसी जगहों में आपको भक्तिहीन लोग मिलेंगे जो परमेश्वर से दूर हैं। So there is a type of wisdom that slowly pulls you away from the things of God. इसका मतलब ये है कि ऐसी बुद्धि है जो धीरे धीरे करके आपको परमेश्वर से दूर कर देती This है। happens through intelligence. Everyone say in the disguise of intelligence. और ये तब होता है जब इंसान अपनी अक्ल में चलता है। Oh, we are intelligent people. We have to research and nothing wrong with that. But if it's pulling you away from God, be careful. अगर आप इतनी अक्लमंद हैं, आपकी खोज आपको परमेश्वर से दूर कर रही है तो आपको सावधान रहना चाहिए, ऐसी बुद्धि सही Then नहीं there है। is something called logic. और ऐसी चीज है जिसे तर्क वितर्क कहा जाता Look at है। somebody and say logic or rationality. और किसी को देखकर कहिए आपके मन का तर्क वितर्क। You see, when I was studying theology, और जब मैं थियोलॉजी पढ़ रहा था, much of the theology that I studied, और अधिकतर जो थियोलॉजी का मैंने अभ्यास किया, they tried to prove the miracles wrong. और वो कोशिश कर रहे थे कि सारे आश्चर्य कर्म को गलत साबित करें। So many of the learned people, anybody understand what I'm saying? आप इसे I'm not कुछ talking समझ about रहे small stuff. I'm talking about Doctor of Divinity and all that stuff. Most of the stuff that they're trying to prove, they're saying, dissert this, how this miracle can be wrong. I said, why do I prove the miracles of Jesus wrong? और दैविकता के ज्ञान में वो सिखाते हैं कि देखो ये जो आश्चर्य कर्म है जो प्रभु ने किया वो गलत साबित करने की कोशिश करते हैं। There is another type of wisdom which is looks spiritual and draws people away from God. और एक दूसरी तरह की बुद्धि है जो दिखने में तो आध्यात्मिक होती है पर वो परमेश्वर से आपको दूर लेकर I want you जाती to है। listen carefully to today's word. मैं चाहता हूँ कि आज का वचन आप बहुत ध्यान से सुनिए। Write it down. लिख लीजिए। There are 3 primary divisions or dimensions of wisdom. और बुद्धि के ऐसे
3 अलग अलग आयाम हैं। As I'm speaking, the real wisdom will come upon you. Amen. और जैसे मैं वचन का प्रचार कर रहा हूँ, जो खराब बुद्धि है वो आपके पास The आएगा। first one is the wisdom of God. और सबसे पहले है परमेश्वर की बुद्धि। Somebody say the wisdom of God. और कोई कहे परमेश्वर की बुद्धि। Write it down. लिख लीजिए। Yes, on this 30th day of the fast, you must pray for this. और उपवास के 30वें दिन पर आपको इस बात को लेकर प्रार्थना करनी चाहिए। The second wisdom is the wisdom of man or soulish wisdom. और दूसरा जो बुद्धि है वो है इंसान की बुद्धि या इंसान की अकल। And the third wisdom is demonic or devilish wisdom. और जो तीसरी तरह की बुद्धि है वो शैतानी बुद्धि है। If you want to grow in the things of God, if you want to be where what God has called you to be, then you must understand the difference between these three. अगर आप परमेश्वर की बुलाहट में बढ़ना चाहते हैं और परमेश्वर के वचन को बखूबी समझना चाहते हैं तो बहुत जरूरी है कि इन बुद्धियों के फर्क को हम अच्छे से समझ सकें। This is not optional, और ये एक विकल्प नहीं है, but it is essential for discernment, for maturity in what God has called you for. पर हमारे लिए समझना बहुत जरूरी है कि परमेश्वर की बुलाहट मेरे ऊपर क्या है उसको परख सकें। You know, I've seen Christians, they don't walk in victory because they don't walk in wisdom. और मैंने देखा है मसीहों को जो जीवन में विजय में नहीं चलते हैं क्योंकि उनके अंदर वो बुद्धि नहीं है। They are educated, वो पढ़े लिखे हैं, they love God, वो प्रभु से प्यार करते हैं, but somewhere they are falling पर कहीं ना कहीं वो गिर रहे हैं because they don't walk in the wisdom of God. क्योंकि वो परमेश्वर की बुद्धि के सहारे नहीं चलते हैं। So let's look at the first one. तो आइए हम पहले बुद्धि की ओर Somebody देखेंगे। lift your hands and begin to pray in the spirit right और कोई now. तो अपने हाथों को उठाकर अन्य भाषा में Yes, प्रार्थना louder right करें। now. Shabbat. अपना मुंह खोलकर अन्य भाषा में प्रार्थना कीजिए। Holy Spirit of the living God. और जीवित परमेश्वर की Somebody आत्मा lift your hand and pray right now. अपने हाथों को उठाकर प्रार्थना कीजिए Move upon everyone. और पवित्र आत्मा हर एक के जीवन में Move कार्य upon कीजिए। everyone this morning. हर एक के जीवन में आज सुबह आप कार्य कीजिए। Open our eyes and ears. हमारी आंखों को और हमारे कानों को आप Those खोल are watching दीजिए। us, lift your hands at home and begin to pray in the spirit. और जो हमें देख रहे हैं अपने घर बैठे अपने हाथों को उठाइए और अन्य भाषा में प्रार्थना Can कीजिए। some prayer warriors lift your voice right now? और कोई तो प्रार्थना योद्धा अपनी आवाज को ऊंचा कीजिए And pray, Holy Spirit, open the eyes and ears of the people. और कहिए पवित्र आत्मा अपने लोगों की आंखों को और कानों को आप खोलिए। Open the hearts of your people अपने लोगों के हृदय को आप खोल दीजिए to receive your word. ताकि वो आपके वचन को ग्रहण कर सके In Jesus' name. यीशु के नाम में। And all God's people said, आमीन। Amen. The first one is the wisdom of God. और सबसे पहला है परमेश्वर की बुद्धि। This highest and truest form of wisdom, it originates with God Himself. और ये जो बुद्धि है जो सबसे श्रेष्ठ है सबसे शुद्ध है इसकी शुरुआत परमेश्वर से होती है। Notice I said the highest and the truest form of wisdom. और बुद्धि का सबसे श्रेष्ठ और सबसे शुद्ध जो आयाम है वो है परमेश्वर की बुद्धि। Go with me to the book of James, chapter 1 and verse 5. आइए हम पढ़े याकूब की किताब 1:5। Look what it says. और देखिए वचन If क्या कहता any है। of you lacks wisdom, यदि तुम में से किसी को बुद्धि की घटी है what he should do or she should do, let him ask of God, तो उस व्यक्ति को क्या करना चाहिए वो परमेश्वर से मांगे who gives to all liberally and without reproach, जो सभी को उदारता से देता है बगैर रुके and it will be given to him. और उसको दिया जाएगा। The first thing you need to understand about the wisdom of God is this. और परमेश्वर की बुद्धि को लेकर पहली बात जो आपको समझनी है वो ये The है wisdom of God is not discovered, it is received. परमेश्वर की बुद्धि को खोजा नहीं जा सकता उसे प्राप्त करना हमें सीखना है। नहीं, जोर से बोलिए, उसे खोजा नहीं जा सकता है, उसे खोजा नहीं जा सकता उसे क्या करना है? प्राप्त करना है। प्राप्त करना है, उसे रिसीव करना है। It cannot be obtained through human efforts. Now this is the problem. और परमेश्वर की बुद्धि को हम इंसानी मेहनत से हासिल नहीं कर सकते। You cannot work for it. आप उसको हासिल करने के लिए कड़ी मेहनत नहीं कर सकते। But here's the truth. पर सच्चाई यहाँ है It flows from a relationship with God. जब आपका रिश्ता परमेश्वर के साथ होता है उस रिश्ते के कारण वो बुद्धि आपके अंदर बहती है। It flows with a dependence on God. जब आप परमेश्वर पर पूरी तरीके से निर्भर होते हैं तो ये बुद्धि आपके जीवन में I want कार्य you to करती listen है। to this carefully. मैं चाहता हूँ आप ध्यान से ये बात सुनिए। Many of you आप में से बहुत से लोग have fallen into issues not because you are a fool. You have fallen into issues and failures because this wisdom has not come into your life. आप में से बहुत से ऐसे लोग हैं जो अलग अलग तरीके से की परेशानियों में इसलिए नहीं पड़े हैं कि आप बेवकूफ हैं, पर इसीलिए आप तकलीफों का सामना करते हैं क्योंकि आपके अंदर परमेश्वर की बुद्धि नहीं है। You're fallen into financial issues. आपके जीवन में आर्थिक तंगी है।
relational issues, आपके रिश्तों में तकलीफ है, corporate issues, आपके नौकरी के स्थान में तकलीफ business है, issues. आपके व्यापार में सब सही Not नहीं चल रहा because है। you are not capable. No, you are very capable. ये इतनी सारी जो गड़बड़ी चल रही है वो इसलिए नहीं कि आप लायक नहीं है, आप बहुत लायक और योग्य हैं। कितने लोग ये वर्ड को जानते हैं? हिंदी में कहते हैं ना, येड़ा बन के पेड़ा निकल गया हुआ गया है ना। और ये ना जो शाने लोग रहते हैं बोले ये कैसा अटक गया है यार। कभी सोचा था? देखा आपने? बड़े बड़े लोग जो है अटक जाते हैं और ये लल्लू राम जी निकल गए आगे। ये कैसा हुआ? How is this possible? This is the wisdom of God. और ये परमेश्वर की बुद्धि का काम Many है। people, please listen to me. If you listen to this and cry out for this, अगर आज आप ध्यान से सुने many और of इसकी the मांग things करें, in your life will be sorted out तो आप में से today. बहुत सी परेशानियां जो आपके जीवन में है वो सुलझ I जाएंगी। give you 10 days. मैं आपको 10 दिन का समय On देता हूँ 31st, you will have a और testimony. 31 को आप अपनी गवाही लेकर Mark आएंगे। my words. मेरी बातों को याद रखना This will happen in your life. और ये आपके जीवन में होगा। So this wisdom, please listen carefully. तो ये जो बुद्धि है It comes from a relationship with God. और ये परमेश्वर के साथ रिश्ता निभाने से आती है। It comes from a dependence on God. जब आप परमेश्वर पर निर्भर होते हैं तो ये बुद्धि आपके जीवन में कार्य करती Lift your है। hands and say, Lord, I need this wisdom. अपने हाथों को उठाकर कहिए कि प्रभु मुझे Begin इस to बुद्धि pray, की begin जरूरत to है। pray, begin to अपना pray. मुंह खोलकर प्रार्थना कीजिए। You are not here to listen to a sermon. You are here for a transformation. आप यहाँ पर सिर्फ एक वचन सुनने के लिए नहीं Pray आए हैं, पर right अपने now. जीवन में परिवर्तन Say, लेके Lord, आए I हैं। need your wisdom to operate in every area of my life. अपना हाथ उठाकर कहिए कि प्रभु मुझे आपकी बुद्धि की जरूरत है कि मेरे जीवन के हर एक पहलू में आपकी बुद्धि In काम the करे। name of Jesus. यीशु के नाम में। And God's people said, Amen. 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 Now let's look at the second thing, the characteristics of God's wisdom. You must learn to recognize why characteristics? Because you need to learn to recognize the wisdom of God. परमेश्वर की बुद्धि के क्या गुण हैं वो समझना बहुत जरूरी है ताकि हम उसकी बुद्धि को पहचान सकें। You know, every jeweler, और हर एक जो जौहरी है they know the characteristics of a true jewel or true diamond, gold. They know the characteristics. And based on that, they discern whether this is true gold or false gold. Amen to that. और right हर now? जो जौहरी है वो अपनी मणियों को खरे सोने को अच्छी तरह से समझ सकता है Yes. कि कौन सा खरा सोना है और कौन सा खोटा सोना So है। let's look at the characteristics of God's wisdom. तो आइए हम परमेश्वर की बुद्धि के क्या गुण हैं उसे हम समझें। James chapter 3 and verse 17. याकूब की किताब 3:17। Here we go right now. आइए हम But पढ़ें। the wisdom that is from above is what? First pure. और परमेश्वर की बुद्धि जो Write it ऊपर down. से आती है सबसे पहले तो वो पवित्र होती है Second, it is peaceable, और दूसरा मिलनसार है, gentle, तीसरा कोमल willing to yield, और वो मृदु भाव रखता है full of mercy और दया मन में रखता है and good fruits, और अच्छे फलों से लदा हुआ without है, partiality and without hypocrisy. बगैर पक्षपात के और बगैर दिखावे के। God's wisdom over here, I want to bring out 4 characteristics. Write it down. 4 characteristics. और लिखिए परमेश्वर की बुद्धि के 4 गुण। Write it down. The first one, सबसे पहला it begins with purity. सबसे पहला जो परमेश्वर की बुद्धि है वो पवित्र है। Whenever the wisdom of God operates in a person's life, it doesn't compromise. In other words, it is connected with holiness. और जब भी परमेश्वर की बुद्धि It's एक व्यक्ति pure. के जीवन में कार्य करती है तो ये बुद्धि इतनी शुद्ध और पवित्र है कि किसी बात से वो समझौता नहीं उसमें करती। मिलावट नहीं होती है। कितने लोग सुने मैं क्या कह रहा हूं? That's how you recognize the wisdom of God. और इस तरीके से आप परमेश्वर की बुद्धि को परख सकते हैं। The second one, और दूसरा, the wisdom of God will bring peace in your life, और परमेश्वर की बुद्धि आपके जीवन में शांति लेकर आएगी, not confusion. उलझन नहीं। When this wisdom operates, और जब ये बुद्धि कार्य करती है, though you make hard decisions, you will have a peace in your heart. भले ही आप बड़े बड़े फैसले क्यों ना लेते हो जो सख्त हो, फिर भी आपके मन में शांति Maybe होगी। it's concerning finances, हो सकता है वो आपके पैसों को लेकर हो, tough decision, आपको बहुत ही कठिन फैसले ले रहे but हैं, you will have peace in पर your फिर heart. भी आपके मन में शांति होगी। Maybe it's a relationship issue, हो सकता है आपके रिश्ते में कोई तकलीफ but है, you will have a peace in your पर heart. आपके मन में शांति Say होगी। everyone, the wisdom of God. हर कोई कहे परमेश्वर की शांति। The third one, जो तीसरा the है, wisdom of God will transform your character, not just your decisions. और परमेश्वर की जो बुद्धि है वो आपके चरित्र में परिवर्तन लेकर आएगी। Look at somebody and say, तुम्हारे चरित्र में परिवर्तन लेकर आएगी। तुम्हारे चरित्र में परिवर्तन लेकर आएगी। ऐसा नहीं तुमको मैनिपुलेटर बनाएगी, ऐसा गटबाजी, पॉलिटिक्स, ये वो नहीं, उस आपके अंदर एक चरित्र का ट्रांसफॉर्मेशन आ जाएगा। हेलो,
So as leaders, we must be very careful about this. एक लीडर होने के नाते हम इससे बात को लेकर बहुत सावधान रहना Putting चाहिए। one against the other, talking against people's backs and things like that, manipulation. No, sir. हमें किसी को That's not नीचे the नहीं wisdom of गिराना है, God. हमें किसी की बुराई नहीं करनी है, किसी को बहलाना फुसलाना नहीं है, ये प्रभु की Usually बुद्धि नहीं है। people know these things. और लोगों को ये बातें बहुत अच्छे से पता है। How many of you following me right आप now? में से कितने लोगों को समझ में आ रहा है? People of God, प्रभु के लोगों, many people think the word of knowledge operates only on the stage. और बहुत से लोगों को लगता है कि जो वचन, ज्ञान का वचन है, वो सिर्फ स्टेज से कार्य करता है। You ask my staff now. आप मेरे स्टाफ से पूछिए। I was with my knees on the floor just now, और अभी praying. मैं अपने घुटनों पर जाकर प्रार्थना कर रहा था। I was praying for you. मैं आप सभी के लिए प्रार्थना कर रहा था। So it's not that you cannot discern. People can see through your facade. और लोग आपके कार्य के द्वारा सब कुछ देख सकते हैं, तो आप किसी को फंसा नहीं सकते हैं। फंसने वाले लोग हैं, लेकिन सबको नहीं फंसा सकते हैं. Are you getting me right now? क्या आप समझ रहे The हैं? fourth one, चौथा, it aligns with God's nature. God's wisdom will align with His nature, जब- align with His will. जब परमेश्वर की बुद्धि आपके अंदर कार्य करेगी, तो वो परमेश्वर के स्वभाव से, परमेश्वर की मर्जी से मेल खाएगी। How many of you understand right आप में now? से कितने लोगों को समझ में आ Say रहा to है? everyone 4 things. और कहिए 4 बातें। If you better write it down. आप लिख लीजिए। The first one, it begins with purity. और सबसे पहले इसकी शुरुआत पवित्रता या शुद्धता से It होती है। produces peace. और ये बुद्धि शांति लेकर आता It है, transforms character. और हमारे चरित्र में परिवर्तन लेकर And आता it है। aligns with God's nature and will. और परमेश्वर की बुद्धि परमेश्वर के स्वभाव और उसकी मर्जी के हिसाब से ठीक बैठता है। Hallelujah. Hallelujah. Can I put it in one sentence? और मैं एक वाक्य में कहना God's चाहूंगा, wisdom is deeply connected to the fear of the Lord. और परमेश्वर की जो बुद्धि है, उसका गहरा रिश्ता परमेश्वर का भय मानने से है। Can I tell you something? आपसे कुछ कहना चाहूंगा। There was a time, ध्यान से सुने इस वक्त, ध्यान से I सुनिए। had no peace in my life because of certain issues many years back when I came to the Lord. और बहुत साल पहले जब मैं प्रभु में नया नया आया था, मेरे मन में शांति नहीं थी, क्योंकि बहुत सारी I had परेशानियां made चल many रही थी। mistakes concerning my finances. और पैसों को लेकर मैंने बहुत सारी गलतियां की है। And one day, पर एक दिन, I stood outside a church like this. और इसी तरीके की एक कलीसिया थी जिसके बाहर I मैं did not ठहरा know था। it was a church. और मुझे नहीं पता था कि यहाँ पे कलीसिया And है। I was very tensed. और मैं बहुत ही Of course, परेशान it was था। not so many people, small classroom. और And I बहुत was ही standing छोटा outside. क्लासरूम था, मैं बाहर ठहरा था। आणि तिथे कोण मराठीमध्ये प्रचार करत होता. And somebody was Yes. preaching in Marathi there. Hello, are you listening right now? Yes. परमेश्वराचं भय परमेश्वराचा ज्ञानाचा आरंभ आहे. Amen. The preaching was about, परमेश्वराचा भय Amen. The preaching was ज्ञानाचा आरंभ about, आहे. I was like, wow. You see, the fear of the Lord is the beginning of wisdom. परमेश्वर का भय मानना बुद्धि की शुरुआत है। That led me to the search of wisdom. और जब मैंने ये सुना, तो मैं बुद्धि की खोज के पीछे गया। Somebody say, I'm listening right और now. कोई कहे कि मैं सुन रहा हूँ। If there was one thing you need today, अगर आज एक ऐसी चीज है जिसकी आपको बहुत ज्यादा जरूरत है, it's the wisdom of तो God. वो है परमेश्वर की बुद्धि। It will help you. Listen to me. ध्यान से Today सुनिए। you are suffering because somewhere आज आप परेशान हैं क्योंकि कहीं ना कहीं the wisdom of God was absent in your life. परमेश्वर की बुद्धि आपके जीवन में नहीं है। But don't fear. पर डरिए मत। If this wisdom comes upon you, और जिस दिन ये बुद्धि आपके जीवन में आ जो जाएगी, चीजें बिखरी हुई हैं वो चीजें खड़ी हो जाएंगी. everything that is scattered will be uplifted। Today lift your hand and begin to pray right अपने हाथों को now. उठाकर प्रार्थना Lord, I कीजिए। need this wisdom right प्रभु, now. मुझे इस बुद्धि की जरूरत है। This wisdom of God will attract things in your life. और ये जो परमेश्वर की बुद्धि है, वो आपके जीवन में चीजों को In the आकर्षित mighty करेगी। name of Jesus. यीशु के सामर्थ्यशाली Somebody नाम say में। और hallelujah. कोई कहे हालेलुया। Amen. Hallelujah. 1 Corinthians 1:24. 1 कुरिन्थियों 1:24। 1 Corinthians 1:24. 1 कुरिन्थियों का पहला और 24 Look at what it says. But to those who are called, कि जो बुलाए हुए हैं, both Mangaloreans and Goans and Tamilians, hallelujah, Mangalore के हो, गोवा के हो, and Malayalis तमिलनाडु के and हो। Telugus and come on now, hallelujah. अलग अलग भाषा के जो लोग बुलाए गए हैं, Pastor उधर तो नहीं है ऐसा. And Punjabis, जो पंजाबी हैं, somebody saying मेरा नाम नहीं पुकारा. And Maharashtrians and Christ, the power of God and the wisdom of God. मसीह जो परमेश्वर का सामर्थ्य है और परमेश्वर का ज्ञान है। Somebody say I received this word. और कोई कहे मैं इस वचन को ग्रहण कर रहा हूँ। God's wisdom is manifold in Christ और Jesus. परमेश्वर की बुद्धि मसीह यीशु में प्रकट होती है। People of God, परमेश्वर के लोगों, what I want to share with you, जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, it will blow your mind right now. और वो आपको अब अलग ही तर्क पे लेकर जाएगी। One day, एक दिन I was in a special leaders meeting मैं एक खास लीडर्स की सभा में था। with a great man. I think, can we shift the intercession upstairs, please? Yeah, because we are missing the
You pick up and you come away. I appreciate intercession. Yeah, you can shift it up. So you can quietly go upstairs and pray. You know, your mind, na, when it refreshes, kalas, you lost it. आपका There is something called a zone. Look at somebody and say zone. एक ऐसा खास इलाका है जिसमें आपका मन लगा रहता है। अगर Zone, वहां से zone. ध्यान हट When you जाए, get into that zone, you can pull things from the spirit. अगर आप उस I tell my son, don't disturb me when I'm in my zone. मैं अपने बेटे से कहता हूँ कि जब मैं अपने आप में रहूं तो मुझे मेरा ध्यान मत भटकाना। There is a zone. Look at somebody as a zone. एक ऐसा Big writers, singers, you know, this Rahman and all this, they know what is zone. एक ऐसा माहौल होता है, जब वो इंसान उस माहौल में चले जाते हैं तब वो बड़े बड़े गीत लिख पाते हैं। वहां पर हमारा ध्यान अगर भटक जाए, See, I was about to say something. Thak, gone. When I was in a leaders meeting many years back, और बहुत साल पहले जब मैं एक लीडर्स की सभा में था, I was with a great man of God called Uncle Tejas Dinakaran. Anybody knows बहुत ही him? जो बड़ा See that. परमेश्वर का He's दास dead है, and gone, Uncle but Tejas yet you know him. वो मरकर स्वर्ग चले गए, अब भी हम No उन्हें social पहचानते media, हैं। no YouTube, but still you know him. Come on, अब social hallelujah. media और YouTube नहीं See, था, come फिर on, let's भी give him a हम big सब लोग hand. जानते हैं, God उनके लिए bless. जोरदार ताली बजाइए। After meeting Jesus and my mother, I like to meet him when I go to heaven. और स्वर्ग में I mean जब मैं it. यीशु और अपनी माँ से मिलने के बाद मैं उनसे मिलना चाहूंगा। Listen to this. ध्यान से सुनिए। He said something that blew my mind. और उन्होंने कुछ ऐसी बात कही जिससे मैं बहुत ही आश्चर्यचकित हुआ। Somebody, you know, there was a question answer session. और सवाल जवाब का स्तर चल रहा था। And one pastor asked him, he says, Dinakaran, sir, he says, if there's one thing you would pray to God for, what would that be? एक पास्टर ने उनसे पूछा, अगर एक ऐसी चीज है जिसके लिए आप परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे तो वो क्या होगा? It was a long question, of course. वो बहुत ही बड़ा सवाल He था। says, what is the one thing that has increased your ministry all over the world? One thing. एक कौन सी वो चीज है जिसके वजह से आपकी सेविकाई विश्व भर में फैल गई है? And I thought, और मुझे लगा, because I loved him for this gift, you know, it was prophecy, word of knowledge, you know, come on now, hello. और That उनके in those अंदर days, early भविष्यवाणी का days, दान like था। he was my role model. Like I tell you, I had all his tapes. Not, I wouldn't like to say all, but उनके सारे टेप्स मेरे पास थे, मैं उनके वचन सुनता था। there was a, you know, we had something called a Walkman. वॉकमैन था हमारे पास It तभी। didn't walk actually. I don't know why they call it Walkman. But yeah, I know that. Come on. You can use it for sitting also, na? I was into marketing. Okay. So they called it the Walkman. तो उसे वॉकमैन कहा जाता And then है। you had this golden things from the Gulf, you know. The golden, I used to put it on. और मैं लगातार चलाता रहता था। And then we had the pencil to roll it. You will not understand. All will not understand. How many understand? Say yes. Oh, come on. So in those days, तो उन दिनों and he में- said, listen to me. और उन्होंने जो कहा, And I'm like this on my chair. और मैं कुर्सी पर ध्यान से सुन रहा था। He says, if a man can pray for this, and he stopped. और उसने कहा कि अगर एक इंसान इस बात को लेकर प्रार्थना कर सकता है, और फिर वो चुप हो गए। I was like, bol yaar. मैं बहुत ही उतावला हो गया। He said, the wisdom of और God. उन्होंने कहा Listen, कि wait. परमेश्वर की बुद्धि। Listen to this. When the wisdom of God will operate in a man, जब परमेश्वर की बुद्धि एक व्यक्ति में write it कार्य down. करती है, He says, money will try to find him. तो उन्होंने कहा कि पैसा उन्हें ढूंढेगा। No, sir. Likho. प्लीज It राइट इट says, डाउन। when the wisdom of God operates in a man, जब एक व्यक्ति के अंदर परमेश्वर की बुद्धि कार्य करना शुरू money will करती है, start to locate him or her. तो पैसा ढूंढकर उस व्यक्ति को निकालेगा। Second, और दूसरा, people will start to locate him or her. और लोग ढूंढते हुए उनके पीछे आएंगे। Hello. And he says, because of these things, और उन्होंने कहा इन चीजों की वजह से there'll be growth और बढ़ती होगी and there'll be fame. और वो प्रसिद्ध होगा। So the pastor said, give me an example. तो पास्टर ने कहा कि मुझे एक उदाहरण दीजिए। You know what uncle said? आपको पता है अंकल डीजे He से said, क्या you कहा? know. उन्होंने कहा तुम्हें पता Still you are है, asking me. फिर भी तुम मुझसे पूछ रहे हो। Those who laughed understood. जो हंसे उन्हें समझ में He आ said, गया। look at Solomon's life. और उन्होंने देखा सुलेमान के जीवन को देखिए। He said he asked for wisdom. और सुलेमान ने परमेश्वर से बुद्धि की He मांग did की। not, God only himself said, he says, because you did not ask for wealth, और परमेश्वर ने खुद उसे जवाब में कहा क्योंकि तूने पैसा नहीं मांगा you है, did not ask for health that is long life, और तूने सेहत या लंबी उम्र की मांग नहीं you की, did not ask for the life of your enemies. और तूने अपने शत्रुओं की जान नहीं मांगी, He said, I will give you wealth like crazy. और
मैं तुझे इतना ज्यादा धनवान बनाऊंगा. Come on, man. If you don't want it, put on the bank account over there. He says, I'll make you so wealthy. और प्रभु ने कहा कि मैं तुझे इतना ज्यादा धनवान That बनाऊंगा silver will be like dirt on the street. कि पैसा तेरे लिए रास्ते का कचरा बनेगा. Come on, hello, are you चांदी listening है. right now? Please understand this. और ध्यान से सुनिए. And that was one thing that operated in Solomon's life. Please listen carefully, sir. और ये एक ऐसी चीज थी जो सुलेमान के जीवन में कार्य कर रही थी. Listen, I was in Ethiopia. और मैं इथियोपिया में था. When I landed over there, जब मैं वहां पर पहुंचा, there I saw one name. I said, बाप रे ये क्या है भाई? और मैंने एक चीज देखी जो देखकर मैं हैरान हुआ. Their lounges are called Shiba Lounge. और उनके लाउंजेस का नाम ही शिबा लाउंज है. So I was like, अरे रहेगा Shiba Lounge, Shiba, Queen of Shiba. और शिबा की रानी. Queen of Shiba was from Ethiopia. और शिबा चलो नहीं, आज मैं कुछ सीख गया. Many people say, कौन शिबा? शिबा आज आई नहीं है लगता है. आई है ओ. Shiba Lounge. और लाउंज का नाम So the शिबा pastor लाउंज. said, see pastor, how, she got a deep voice, I said, yeah, must be one. So we went once, another place. और फिर दूसरी जगह गए. Shiba Gallery. और गैलरी का नाम भी शिबा तेरी गैलरी तो था. सब जगह Shiba. They are so influenced by that Shiba. और शिबा का इतना Not अच्छा Bathsheba, प्रभाव उन हाँ? पर है. बादशिबा नहीं. बाबा गलत शिबा के पीछे मत लगो, लफड़े हो जाएंगे. Queen of Shiba. Shiba is good, huh? Okay, हाँ. That lady, और वो जो स्त्री है, she crossed so many thousands of kilometers just to find this man. और ये जो शिबा की रानी इतनी Hey! प्रसिद्ध है, इतना दूर आई सिर्फ सुलेमान राजा से Not मिलने. flight. Hello. फ्लाइट से नहीं. When you travel from Mumbai to Canada, 18 hours, 20 hours, ऐसा लगता है कि निकल जाऊं. बोले प्लेन रोक, उतरना है मुझे. You get mad. आप पागल हो जाते हैं. Nothing you have to do. You're just sitting. क्योंकि कुछ करना ही नहीं है, इतने घंटे सिर्फ बैठना है. एसी में बैठा है, मूवी चल रहा है किसका, फिर भी आदमी पागल होता है. Anybody understand what I'm saying? See? अच्छा हो गया आप लोग यहाँ पे आए हैं. And imagine traveling for months. और सोचिए महीनों से वो सफर कर रही थी. A woman, और एक स्त्री, no washrooms. बाथरूम नहीं कहीं पे. Come on, ladies. Yes. No proper bath. और अच्छे से वो नहा नहीं पा रही थी क्योंकि इतने महीनों से वो सफर कर रही थी. No routine, skin routine. Come खूबसूरती का on. ध्यान नहीं. Come on, ladies. I'm preaching good this morning. Hallelujah. Praise the Lord. Praise the Lord. No pedicure, manicure, 3 months. And she appears beautiful before Solomon. और फिर भी सुलेमान के सामने That's वो बहुत something, brother. खूबसूरत दिख रही थी. Listen to this. ध्यान से People सुनिए. started looking out for Solomon. बोले ये आदमी क्या बोलता है ये? और लोग ढूंढ रहे थे, सुलेमान की खोज में थे कि ये क्या बोलता है. May that wisdom come upon us today और मेरी right प्रार्थना now. है कि वही बुद्धि आज हमारे I ऊपर said, है may यीशु के that नाम be, में. sir, your business will grow 4 times, I और prophesy. 4 गुना आपका धंधा बढ़ेगा, ये मेरी भविष्यवाणी है. In the name of Jesus. यीशु के नाम में. Not with this चालाकी ये जो लोग करते हैं ना. सर इधर बाथरूम आएगा, इधर प्लेग्राउंड आएगा और आप जस्ट डाल दीजिए सर 40% डाल दीजिए. 40% डाल के 10 साल हो गए, गटर भी नहीं आया उधर. This is how people earn money in the world. और इस तरीके से चालाकी से लोग आज दुनिया में पैसे कमा रहे हैं. What do they get? Nothing. उन्हें बदले में क्या मिलता है? Their कुछ नहीं. children are in dread and sorrow. और क्योंकि वो दूसरों को फंसाते हैं, इसलिए उनके बच्चे दुख झेलते हैं. I'm telling you, मैं आपसे कहना चाहता हूँ. it attracted wealth. और ये बुद्धि ने पैसे को, धन It को आकर्षित किया attracted people. और लोगों को आकर्षित किया. Do you need people? क्या आपको लोगों की जरूरत है? You can attract people with manipulation. आप लोगों को बहलाकर फुसला के अपने पास लेकर आ सकते हैं. भेलपुरी, आजा मेरे पीछे आजा, आजा मेरी गाड़ी में बैठ जा, वो यहाँ दरवाजे से आएगा, दूसरी गाड़ी से दरवाजे से निकलेगा. That's why you cannot have people. और इसीलिए लोग आपके साथ टिकते नहीं हैं. सच बोल रहा हूँ. You see, team बनाना it's very easy, but और team को लोगों का- maintain करना बहुत difficult है. लोगों come का on, son. दल बनाना जरूरी है, पर लोग अगर आपके साथ टिकते हैं वो बहुत बड़ी बात है. Why he did not smile? Why he forgot my birthday? अरे, that's how you don't have the wisdom of God. ये छोटी मोटी बातें आप मन पे लेते हैं, इसका मतलब है कि प्रभु की बुद्धि आपके अंदर नहीं है. बाजू वाले को बोल, तू पढ़ा लिखा है. तू पढ़ा लिखा है. नहीं बोल.
अरे जो नहीं पढ़ा लिखा वो भी अच्छा लगेगा ना उसको यार। किसी ने तो मुझे पढ़ा लिखा कहा। तू पढ़ा लिखा है, तू पढ़ी लिखी है, लेकिन तू लोगों को संभाल नहीं पाती You है। are well educated, but you cannot take care of your people. कभी सोचा है तूने Have you ever thought about क्यों? this? Why? एक रिलेशनशिप नहीं संभाल सकती। You're not able to take care of one relationship in your life. Why? Why? तो लोगों को टीम नहीं संभाल सकती। You're not able to take care of your team. Because of the wisdom of God. क्योंकि परमेश्वर की बुद्धि आपके अंदर And when नहीं this है। money came, और जब ये पैसा आया, what is the formula for fame? Simple. Fame is equal to money plus people. और अगर आपको प्रसिद्ध होना है तो उसके लिए क्या चाहिए? पैसे और लोग जब आपके If पास you want होते to हैं, तो आप impact खुद the ही kingdom प्रसिद्ध in हो the जाएंगे। kingdom of God, अगर आप परमेश्वर के राज्य में प्रभाव डालना चाहते what do you हैं, need? आपको किसकी जरूरत है? Of course you need God's wisdom हाँ, परमेश्वर की बुद्धि की तो and you जरूरत need है। money and people. आपको पैसे की भी जरूरत है और उतनी ही लोगों की भी जरूरत है। ये हॉल हालेलुया बोल के नहीं आया। उसने बोला ये है बैंक अकाउंट, पैसे भेजिए। साउंड साहब को हम हाथ नहीं मिलाया, करेक्ट है अर्जुन? उसने बोला इतना भर, बाद में साउंड लेके जा। साउंड विल एम्पलीफाई द वॉइस ऑफ गॉड। जो साउंड We need है, वो these परमेश्वर की things. आवाज को बढ़ाकर हमें सुनाता You है। came by rickshaw, you did not say praise the Lord. मलाड लेके चलिए। उसने बोले praise the Lord, पैसे दीजिए। Be practical. और अकल से चलिए। No, don't be super spiritual. प्रभु का यही प्रॉब्लम है। यीशु मसीह ने, एंड्रू ने कहा प्रभु इतने पैसे हमारे पास नहीं है इतने लोगों को खाना खिलाने। एंड्रू वाज प्रैक्टिकल। खुदा ने बोला सही है एंड्रू, इसलिए मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। Amen, amen. जीसस इज प्रैक्टिकल। और यीशु जो है वो अकल से चलते हैं। कम ऑन, हालेलुया। हालेलुया। प्रभु टैक्स भरना है, तो पीटर ने बोला जा हुक लेके जा, मच्छी के मुंह में सोने का कॉइन आएगा। यीशु मसीह ने बोला नहीं प्रभु, टैक्स वाले को उठा ले। ना रहेगा टैक्स, ना रहेगी तकलीफ। सिंपल, प्रैक्टिकल। हेलो, आर यू लिसनिंग राइट नाउ? क्या आप सुन रहे हैं? Jesus said, boss, go to the fish. और Somebody यीशु has कहा- not paid his tithe. That fish took the money. Come on, hallelujah. Jesus, that's another story. I'll tell you later. ये दूसरी कहानी है, कभी और बताऊंगा। People are angry on me. Doesn't matter, sir. If you're angry, I don't care. अगर आपको मुझ पर गुस्सा भी आता है तो ठीक है, मुझे My परवाह truth, नहीं। the truth that I share with you will transform your जो life. वचन का सत्य मैं आपको बता रहा हूँ, आपके जीवन में परिवर्तन जरूर So the लाएगा। wisdom of God from today onwards, तो आज से you will cry out to God आप परमेश्वर से इस चीज की मांग and say, करेंगे God, I need your wisdom. कि प्रभु मुझे आपकी बुद्धि की जरूरत है। Somebody say, praise the Lord. और कोई कहे प्रेज द It will लॉर्ड। make you a better mom. और ये आपको बेहतर माँ बनाएगा। It will make you a better husband. और यही बुद्धि आपको बेहतर पति To run बनाएगा। a family, to lead a family, it's not easy. You need the wisdom of God. परिवार Hallelujah. चलाना आसान नहीं है, इसे चलाने के लिए परमेश्वर की बुद्धि की जरूरत पड़ती If है। this is blessing, you say amen, I'm अगर receiving. आप इससे आशीर्वादित हो रहे हैं तो कहिए कि मैं इसे ग्रहण कर The रहा second हूँ। one. और दूसरा, I hope my staff is listening. और मेरी आशा है मेरा hope स्टाफ my leaders मेरा are सुन listening. रहा है, मेरे सारे लीडर्स सुन रहे हैं। Said everyone, the wisdom of man. और कहिए दूसरा इंसान की The बुद्धि। second wisdom is the wisdom of man. और जो दूसरी बुद्धि है वो इंसान की बुद्धि It's है। human wisdom. और ये इंसान की अकल है। It often looks impressive. ये अधिकतर दिखने में तो बहुत अच्छी लगती है It looks logical. और सुनने में ये तो बहुत ही सही दिखती It looks है persuasive. और ये लगता है कि इसके अनुसार कार्य करना सही होगा। सही होगा, ये सही लगता है, सही है। 5 और 2 है 7, सही लगता है, सब कुछ सही लगता है, बट इट इज फ्लॉड। पर ये गलत है या ये दिखावा है, इसमें ये गड़बड़ी बड़ा है। यस, 1 Corinthians 3:18 एक कुरिन्थियों said everyone the wisdom of man. कहिए पर इंसान की बुद्धि। Look what God's word says. और देखिए Let परमेश्वर no का वचन one क्या कहता है। deceive himself. कि कोई भी अपने आप को धोखा न दे। Let no one deceives himself. कोई भी अपने आप को धोखा न दे। पास्टर जी, क्या अपने आप को धोखा दे सकते हैं, You will दिया ask, जा Pastor, सकता can है? we deceive our own selves? हाँ सर। Yes. सबसे बड़ा धोखा जो वो होता है जो आदमी अपने आप को करता है। The biggest deception is when a person deceives himself. जब एक आदमी दूसरों को धोखा देता है उसे शाना कहते हैं। भाई साहब जाके दुबई में बैठ जाते हैं, बोलते ये 500 लोगों का पैसा लेके भाग गया, बोले बहुत बड़ा शाना है, बहुत बड़ा भाई है। हेलो, लेकिन जब आदमी खुद को धोखा देता है वो बेवकूफ कहलाता है। When a person deceives himself, then he is a fool.
Let no one deceive himself. और कोई अपने आप को धोखा ना दे। What? If anyone among you seems to be wise in this age, let him become a fool that he may become wise. यदि तुम में से कोई संसार में अपने आप को ज्ञानी या बुद्धिमान समझे तो मूर्ख बन जाए ताकि वो बुद्धि पाए। What does this scripture mean? और इस वचन का मतलब क्या है? Scripture means that कभी-कभी हम लोग सोचते हैं कि हमको सब कुछ पता है. And sometimes we think we know everything. I don't know about you, आपके बारे में मुझे नहीं पता। but I've seen many times in a marriage, और बहुत सी बार मैंने शादियों में देखा है, you know, वाइफ कहती है संभालना, मैं प्रार्थना कर रहा हूं, तू चुप बैठ, मेरे को सब मालूम है, the husband says I know everything. सब मालूम है मुझे. फिर कुछ लफड़ा होता है, अरे प्रार्थना कर यार थोड़ा सा. ये मेरे साथ भी हुआ है. This has happened. मेरी माँ बोलती है बेटा संभाल. ऐसे तेरे को क्या मालूम है, तू तो दूसरे स्टैंडर्ड में I used to talk to my mother like that. मैं इस तरीके You से not even don't know ABCD properly. What you are teaching me? I'm an MBA. What do you know? And she said, Baba, I don't know, but I don't feel right. और उसने कहा कि मुझे इतनी तो समझ नहीं है पर मुझे सही नहीं लग रहा है. I'm praying for you. मैं तुम्हारे लिए प्रार्थना कर रही हूँ. I'll handle it, I said now. और मैंने कहा कि मैं सब कुछ संभाल लूंगा. After 2 days, 2 दिन के बाद everything is broken. और सब कुछ बिखर गया. The first person I go to is my mother. और सबसे पहले इंसान जिसके पास मैं गया वो मेरी माँ थी. मम्मी, ऐसा हो गया, वैसा हो गया, पैसा लेके भाग गया हो. I'm telling you. Let him become a fool. कि वो बेवकूफ बन जाए. Many people today, आज बहुत से लोग जब कोई बात कर रहा है, even client बात कर रहा है, वो सुनते नहीं client की. when somebody is talking we do not listen what the person Look at somebody and say, you are a good talker, but be a good listener. किसी को देखकर कहिए कि आप बोलने में तो अच्छे हैं पर सुनने के लिए भी अच्छे बनिए. कितने लोग सुन रहे हैं? क्लाइंट की क्या रिक्वायरमेंट है, उसे क्या चाहिए? तुम अपना माल थोप रहे हो, आपका पिछला साल का माल ले ले भाई, एक्सपायरी होने के पहले सर पे ले ले. If you want to be a good businessman, अगर आपको एक बहुत ही अच्छा व्यापारी बनना है be a listener. तो अच्छे सुनने वाले बनिए. Somebody say, what is the market really saying? And you bring a product according to that. और जो जिस चीज की मांग मार्केट में है आप उसी हिसाब से प्रोडक्ट लेकर आइए. I was talking to a millionaire in Dubai. और दुबई में मैं एक अरबपति से बात कर रहा था. He said, Pastor Mike, I want to take you for dinner. और उन्होंने कहा कि पास्टर माइक मैं आपको डिनर पर लेकर जाना चाहता I हूँ. shouted hallelujah quietly. Yeah. I said, you taking my team also? Hey, he said, yeah, of course. So he brought his Porsche. I did not know how to pronounce it. I said, I was thinking Porsche or something, you know. Just kidding, okay. So he brought his Porsche. तो अपनी पोर्शे गाड़ी लेकर आए. So I said, okay. So he brought his Porsche. तो अपनी गाड़ी लेकर आए थे. And he took us out for dinner. और फिर हमें डिनर पर ले. Sorry, it was lunch, okay. And then I was asking him that a few questions. और कुछ सवाल मैंने उनसे पूछे. He said, how did you reach this place? और मैंने कहा कि आप इस स्थान तक कैसे पूछे. And he said पहुंचे. one thing. और उन्होंने एक बात कही. He said, I listen to what is being said. और उन्होंने कहा कि जो कहा जाता है मैं ध्यान से सुनता हूँ. I let the guy speak. और मैं सामने वाले को बोलने का मौका देता हूँ. I understand him. जो वो कह रहा है मैं समझने की कोशिश करता हूँ. I understand him. मैं उसे समझने की कोशिश करता हूँ. And then I talk. और फिर मैं बात करता हूँ. Now he has nothing else to talk. और अब उसके पास बोलने के लिए कुछ नहीं है. The deal is sold. और जो डील थी वो हो चुकी है. Whether it be insurance, चाहे वो इंश्योरेंस हो whether it be real estate. या रियल एस्टेट का डील हो. I spoke to another guy. और मैंने एक दूसरे व्यक्ति से He बात says, I said, how do you introduce software? He says, I see the need first and then I build it. उन्होंने कहा कि पहले लोगों की जरूरत क्या है वो मैं समझता हूँ, उस हिसाब से मैं सॉफ्टवेयर बनाता Become a हूँ. fool. और यहाँ पे लिखा है कि मूर्ख बनिए. The moment you think you know everything. और जिस पल आपको लगता है कि मुझे तो सब And that's पता what है. people are today. अरे मेरे को संभालो, छोटे. This is how people talk, how youngsters speak. और Why आजकल के youngsters? जवान ऐसे ही बात करते हैं. Even the very young people speak like that. जो बहुत ज्यादा जवान है वो भी ऐसे ही बातें करते हैं. ज्यादा जवान. Praise the Lord. Praise the Lord. Write it down. The 4 things. Can I have some? This thing. The 4 things about the human wisdom. Write it down. और इंसान की बुद्धि को लेकर जो 4 बातें हैं लिख लीजिए. It is rooted in natural senses. और इसकी जो जड़ है वो नैसर्गिक इंद्रियों की ज्ञान से जुड़ी है. Secondly, it only is concerned about earthly success. और ये जो इंसान की बुद्धि है सिर्फ वो पार्थिविक सफलता के बारे में सोचता है.
Secondly, it's in human reasoning. I don't want to stop. और वो इंसान की अकल या तर्क वितर्क के बारे में होता है. Somebody say human wisdom. इंसानी Come on, बुद्धि. loudly say human wisdom. इंसानी बुद्धि. And the fourth one is और okay. चौथा, Human wisdom. The first one is natural senses. Everyone say natural senses. और सबसे पहले आपके नैसर्गिक इंद्रियों के ज्ञान मतलब से हमारी जुड़ा सोच से है. हम कुछ भी खिचड़ी पका देते हैं. Second is human reasoning. और दूसरा है कि इंसान की समझ है. Third one, it is only concerned about preserving yourself, और तीसरा होता self-preservation. है कि हम खुद को बचाने की कोशिश करते हैं. And fourth thing about human wisdom is it brings earthly success. और चौथा है कि इस For a short time, of course. बुद्धि से हमें सिर्फ इस धरती पर सफलता हासिल हो सकती है. Write it down. लिख लीजिए. What is the main thing? Pastor, can you tell me one line? These four things are good, but can you tell me one line where I can understand what is human wisdom? कि पास्टर आप एक वाक्य में बता सकते हैं कि इंसानी बुद्धि क्या है? Write it down. लिख लीजिए. Intelligence that is not submitted to God, that is human wisdom. ऐसी अक्लमंदी जो परमेश्वर के प्रति अधीन नहीं होती है, वो इंसानी बुद्धि है. Say it, everyone. Intelligence ऐसी अक्लमंदी that is not submitted to God जो परमेश्वर के प्रति खुद को अधीन नहीं करती, is human wisdom. वो इंसानी बुद्धि है. God is not against intelligence. और परमेश्वर आपके अकल के विरोध में प्रभु नहीं है. पढ़ाई लिखाई के विरुद्ध नहीं है. कितने लोग सुन रहे हैं? हेलो हेलो हेलो. Can I tell you one thing and it will blow your mind. अभी जो मैं अंकल टीचर्स ने एग्जांपल दिया, अभी मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, ह्यूमन विजडम का एग्जांपल दे रहा हूँ. सुने, बहुत साल पहले लोग ये जो फ्लड आया था ना, बाढ़ आई थी, हेलो, संसार में जो बाढ़ आई थी उसके बारे में वो निंदा कर रहे थे. जब मैं मसीह में पहली बार आया ना, तो मैं बहुत सारी किताब देखता था. ये सब फ्लड वर्ड फालतू है, ये सब ऐसा है वैसा है. आई टू रीड बुक्स और मैं ऐसी किताबें पढ़ता था. सब बकवास है. एंड पीपल इज टू से यस बकवास है, इवन क्रिश्चियंस. और मसीह लोग भी कहते हैं कि ये सच. और ये जो बुक लिखी हुई थी, ये बहुत बड़े बड़े विद्वान लोग हैं. And very intellectual people had written these books. मैं इनके जैसा था कि करण, ये सब, you know, youngsters like this. Just start come to the Lord. I was preaching और ये मैं पुस्तकें पढ़ता था. ये बाढ़ कुछ नहीं है, बकवास है, सब ऐसे कभी हुआ नहीं है. And now इसे उसमें लिखा था कि इतना पानी संसार में था ही नहीं, तो इतना पानी आया कहां से? हेलो 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 हेलो. And they said One of the greatest. Can I explain right now? yes. इससे अगर समुद्र का पानी तो समुद्र में है, तो इधर पानी कौन सा आया, कहां से आया? हेलो 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 हेलो. प्लीज अंडरस्टैंड दिस. आप समझिए इसे अच्छे से. एंड वन पर्सन आस्क्ड मी आल्सो. फिर एक व्यक्ति ने मुझसे भी पूछा. ऑनेस्टली आई डिड नॉट हैव एन आंसर बिकॉज़ यू आर आस्किंग फॉर प्रूफ. और सच में मेरे पास जवाब नहीं था. This क्योंकि is वो human सबूत मांग wisdom. रहा था. लिसन, नाउ जस्ट लास्ट ईयर और पिछले साल they found that under the mantle of the earth और उन्हें पता चला कि धरती के सतर के नीचे there is not lava. और लावा या Lava is आग there. नहीं Under है, that there is an ocean of water. पर उसके नीचे जो है बड़ा How many of you know what समुद्र I'm talking है, बहुत about? गहरा पानी He's है. saying now that thing God erupted and brought, and the scripture says, and the fountains of the deep were opened. इसलिए बाइबल में वचन कहता है कि जो गहरे सोते हैं पानी के, वो फूट कर ऊपर आए. I wish that person was there. I would have thrown the book at him. और अगर वो व्यक्ति मेरे पास होता तो वो किताब उस पर फेंकता. But he's not there. I can't find him. Human wisdom. थोड़े टाइम के लिए तुमको बताएगा, ऐसा बताएगा कि तुम बहुत शाने हो. बोले क्या बोलता है, क्या करता है? Human wisdom. Any intelligence, madam, that is not submitted to God ऐसा आपका is human wisdom. जो भी आपका ऐसा ज्ञान है जो परमेश्वर के प्रति खुद को अधीन नहीं करता, वो इंसानी बुद्धि है. Hallelujah. हालेलुया. I said hallelujah. हालेलुया. Listen to me. I want to say something that will really blow your mind. और कुछ ऐसे It आपको may कहना hurt चाहता somebody, हूं, but I have to say it. आप नाराज हो जाएंगे, पर फिर भी मैं See, बोलना God's चाहूंगा. wisdom says man and woman can start a family. How many understand right? और परमेश्वर की बुद्धि कहता है कि एक पुरुष और स्त्री जब एक साथ आते हैं तो परिवार को पैदा कर सकते हैं. But human शुरू कर wisdom सकते हैं. says, पर इंसानी बुद्धि Why कहती you need है a man and woman? कि एक पुरुष और स्त्री की क्यों जरूरत है. Woman and woman can also do. दो स्त्रियां भी मिल सकती हैं. Adam and Harry also will do. एडम और हैरी भी मिल सकते हैं. Come on, did I say anything now? मैंने नाम लिया, Adam and Harry. Look at somebody say, it was Adam and Eve. और कहिए कि आदम और हवा की थी It was बात, not Adam and Steve. और एडम और स्टीव नहीं थे. कोई लोग अभी उठे, बोले क्या बोला?
Said everyone, Adam and not Adam and Steve. So Elon Musk wrote something nice. How many of you know Elon Musk? तो इलॉन Tesla, मस्क ने Elon कुछ अच्छा Musk. लिखा. He said, praise God, Eve had a womb, Steve does not have a womb. और उन्होंने कहा कि प्रभु की स्तुति हो कि हवा की अपनी I कोख said, थी, स्टीव के पास amen, कोख नहीं. Elon Musk. For that, I would love to buy a Tesla. Simple. भाई तो फैमिली शुरू करना है, एक के पास गर्भ होना जरूरी है. That is God's wisdom. और ये But see परमेश्वर की human बुद्धि wisdom, है. बोले, they are in love, they are in this, they are और ये in that. कहते हैं कि वो My प्यार में friend, हैं. if you are living in such wisdom, it's dangerous. अगर आप ऐसी बुद्धि में जी रहे हैं तो ये बहुत ही खतरनाक बात है. पास्टर जी आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं? Why are you saying like this, pastor? This is human wisdom. ये इंसानी बुद्धि है. Today I pray to God और आज मैं परमेश्वर से प्रार्थना that करता you will हूँ turn from this human wisdom. कि आप इस इंसानी बुद्धि से मुड़कर आएंगे. Somebody say, I receive this और word. कहिए कि मैं इस वचन को ग्रहण करता हूँ. Say it loudly, I receive this word. कहिए इस वचन को मैं ग्रहण करता हूँ. Is anybody listening over here? It appeals to your natural senses. और अच्छा आपको- लगता है, आपको शरीर अच्छा को अच्छा लगता है. लगता है. किसी ने मुझसे कहा, पास्टर जी एक सिगरेट पी तो क्या होता है? प्रभु मार देगा क्या? मैं बोले तेरा बाप का पैसा पी ले. लेकिन मुझसे मत पूछ कितनी पी सकता है. वचन में लिखा है कि तेरा शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है. तो मुझसे क्यों पूछता है? तेरे माँ बाप ने तुझे पढ़ाई लिखाई सिखाया ना, बाइबल खोलता है ना तू, तो मुझसे क्यों पूछता है? तेरे पाप को छुपाने के लिए मेरी मंजूरी की जरूरत नहीं है तुझे. बोले सर थोड़ा सा ले सकते हैं क्या? लिखते हैं प्रभु, लोग लिखते हैं. और कौन लिखते हैं पता है? बाहर वाले लोग, प्रभु के लोग लिखते हैं. Believers only write बोले such. कल मेरी शादी है, थोड़ा सा ले सकते हैं क्या? बोले थोड़ा नहीं पूरा घोड़ा ले लो आप लोग. और स्क्रिप्चर भी देता है. पौलुस कहता है कि तिमोथी को थोड़ा वाइन पी लो. मैं बोला क्यों लिखा है वो पता है क्या तुझे? एक चम्मच वाइन पी लो. आप तो पूरा बाटली समेट लेते हैं. ह्यूमन विजडम, इंसानी बुद्धि ह्यूमन रीजनिंग, और इंसान की सोच विचार. ह्यूमन रीजनिंग. कैसे इंसान देखो, का सोच कैसे विचार. कैसे स्क्रिप्चर को देखो कैसे घुमाते हैं. देखो सुन रहे मैं क्या बोल रहा हूं? सेल्फ प्रिजर्वेशन, खुद को आप सुरक्षित रखने की कोशिश सेल्फ करते हैं. प्रिजर्वेशन. एवरीवन से अपने आप का बचाओ, अपने आप का बचाव. अपना बचाओ, अपना पिछवाड़ा संभालो. नहीं बोल रहा हूं मैं, आज मैं बहुत कड़क बोल रहा हूं सर. ये ह्यूमन विजडम है. ये इंसान दूसरों को दबाओ, खुद को बचाओ. इस घुमाओ, खिचड़ी पका के घुमाओ, उसके सर पे डाल दो, मैं बचना चाहिए. दैट इज ह्यूमन विजडम. और ये इंसानी बुद्धि है. But there are, if you can say, yes, I am the head of this department, I am responsible. अगर आप कहते हैं कि इस डिपार्टमेंट का हेड मैं हूं और मैं जिम्मेदार हूं. Yes, send the flowers here also and send the bricks also. Come on. I said, come on. Sir, तुम खाली फूल लेते हो और ईंट दूसरे पे डालते हो. अगर फूल लेते हो और केक लेते हो तो ईंट भी ले लो सर पे. अकल ठिकाने आ जाएगी. सेल्फ प्रिजर्वेशन, खुद का बचाव करना. दिस इज हाउ ह्यूमन विजडम वर्क्स सर. और मैं आज आपको बताना चाहता हूं, टुडे टर्न फ्रॉम दिस ह्यूमन विजडम. और इफ आज- यू मेड अ मिस्टेक, टेल योर वाइफ आई एम सॉरी. अगर आपने गलती की है तो अपनी पत्नी से माफी मांगिए. Somebody say praise the Lord. प्रेज द लॉर्ड. If you messed up, you can tell your children, I'm sorry. As your father, I messed up, but please pray for me. I'm going to do better next अगर आप time. गलती करते हैं तो Come बच्चों on. से माफी मांगिए. I और said, कहिए come on, कि hallelujah. Your children may think you're a fool today, but when they grow up, they will say, my dada had the guts to say sorry. Somebody say और hallelujah. आपके बच्चे आपको Come मूर्ख on, समझेंगे, praise पर the आगे Lord. चल के उन्हें समझ बोले में आएगा मेरा कि बाप इतना बड़ा आदमी नहीं था, लेकिन उसमें दम था. हालेलुया. आजकल बच्चे जो है ना, ऐसा बकवास नहीं चाहते हो, किसी दम वाले आदमी को चाहते हैं. Yes. I challenge you, sir. और मैं आपको चुनौती देना चाहता हूँ. I challenge you this morning. और आज सुबह आपको चुनौती देना चाहता हूँ. Self-preservation is not human wisdom. और खुद को It's not बचाना- God's wisdom. It's human wisdom. खुद को बचाना ये परमेश्वर की बुद्धि का काम नहीं इसकी है, टोपी इंसानी उसको बुद्धि है. लगाना, that is gives you earthly success. और धरती पर आपको सफलता मिल सकती है. But you see, these are how human wisdom operates. पर इसी तरीके से इंसानी बुद्धि कार्य करती है. Praise the Lord. प्रेज द लॉर्ड. Today I pray that you will turn from this human wisdom. और आज मैं प्रार्थना करता हूँ कि आप
इस इंसानी बुद्धि से आज अपना मुंह मोड़ लेंगे and you will say, God, I depend on you. और कहेंगे कि परमेश्वर मैं आप पर निर्भर I will होता not हूँ। depend on human wisdom मैं अपने इंसानी बुद्धि पर to sell निर्भर my नहीं रहूंगा, product, to ताकि मैं lie to people. मैं No, लोगों से झूठ बोलकर अपनी चीजें बेचूं I नहीं। will have the God's wisdom in my पर life. परमेश्वर की बुद्धि मेरे जीवन में कार्य Today I करेगी। pray to God that you will be differentiated. और आज Hallelujah. मैं परमेश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि आप हटके होंगे, आप If अलग होंगे। Joseph's life, human wisdom was not operating, God's wisdom was operating. यूसुफ के जीवन में इंसानी बुद्धि कार्य नहीं कर रही थी, पर परमेश्वर की बुद्धि कार्यशील थी। Today I pray to God, say no to human wisdom. और आज मैं प्रार्थना करता हूँ कि आप इंसानी बुद्धि को ना बोल सके। Yes, you may be an educated man, you may be a big man, but you should say, Lord, here is my wisdom. Now I want to hear you. हो सकता है आप बहुत ही पढ़े लिखे हो, बड़ी हस्ती हो, पर प्रभु के आगे खुद को नम्र करके कहिए कि प्रभु ये मेरी बुद्धि है, आप अपनी बुद्धि से मुझे आशीर्वादित कीजिए। Praise the Lord. Praise the Lord. To whom you get married to, it all looks good. और जिससे आप शादी करते हैं, ये सारी बातें God's दिखने wisdom में says अच्छी हैं। you get married to a person who loves Jesus, who loves you, and will honor your parents. और Come परमेश्वर की on, बुद्धि come कहती है on. कि ऐसे इंसान से शादी करना जो प्रभु यीशु से प्यार करे, I want to tell the men. आपसे प्यार करे। Can I tell the men? मैं सारे पुरुषों आज से शायद बात करना ऑफरिंग चाहता कम आ हूँ। जाए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मैं बोलना चाहता हूँ, when I met my mother-in-law, और जब मैं अपनी सास से मिला, मैंने उसको आंटी नहीं बोला, हेलो आंटी, I did not call her auntie. हेलो अंकल, नो, नहीं। वो आंटी नहीं है, वो मेरी माँ है। She is also my mother. देखो बोला ना ऑफरिंग कम आएगा आज। तुम्हारी बीवी की माँ आंटी नहीं है, Your wife's mother is not your तुम्हारी auntie. बीवी की माँ माँ है। Your wife's mother is your mother too. तुम्हारी बीवी का डैडी जो है अंकल नहीं है तुम्हारा, Your वो wife's तुम्हारा डैडी है। father is not your uncle but your And I'm telling the ladies also, और मैं your स्त्रियों father's से भी mother कह is रहा not auntie, हूँ, आपके जो पति की माँ है वो आपकी आंटी नहीं है, and your father's dad is not your uncle. और आपके पति की जो बाप है वो When a man आपका gets uncle नहीं married, है। जब एक पुरुष की शादी होती है He becomes half. तो वो आधा हो जाता है, Two shall become one. क्योंकि वचन कहता है कि दो Mathematics. मिलकर एक होते हैं। But in the natural, पर नैसर्गिक में everything becomes double. सारी बातें दुगनी होती हैं, He gets two daddies, और दो उससे पिताजी मिलते two हैं, mummies, दो माएं मिलती हैं, two families. दो परिवार मिलते हैं। Come on now. थोड़ा दर्द होगा ना? When you speak like this, जब आप ऐसी बातें करते हैं your daughter, your children, they see this. तो आपके बेटी और आपके बेटे ये बातें This is देखेंगे। marriage counseling, huh? This is marriage ये counseling. शादी की सलाह Pastor, है। what are you talking? I'm doing marriage counseling. मैं शादी I want to की tell the सलाह कर रहा youngsters. हूँ, सभी जवानों से कहना चाहता हूँ, Very important these things. बहुत जरूरी है ये बात। Then you will see God's grace move on a different और फिर dimension. आप देखेंगे कि परमेश्वर का अनुग्रह आपके जीवन में कार्य करेगा। Human reasoning. इंसानी सोच विचार, How do you turn from human wisdom? आप कैसे इंसानी बुद्धि से मुड़ सकते हैं? See what the word says. देखिए परमेश्वर का वचन क्या कहता है। आज रोना धोना बंद, परमेश्वर की बुद्धि में चलो। You have to walk in the wisdom of God, हालेलुया। आज से तुम रोना बंद करो सर। and from today stop crying. हिब्रू 4:12 में लिखा है, परमेश्वर का वचन बटर लगाने का मस्क लाइफ नहीं है, बोले लगा मस्का, लगा मस्का। एक दिन इतना लगाओ 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 कि पब्लिक फिसल के अपनी कमर ही तोड़ दे। आजकल कोई रैप्चर के बारे में प्रीच क्यों नहीं करता? क्योंकि वो डरते हैं, क्योंकि इंटरनेट पे ऐसी फालतू चीजें बोल दी जाती है। कितने लोग सुन रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूं? किसी ने कहा रैप्चर ये होने वाला है, किसी ने कहा रैप्चर 2 महीने के बाद होने वाला है। पब्लिक परेशान, किसी ने साउथ अफ्रीका में घर बेच दिया, गाड़ी बेच दिया, रास्ते पे आ गए रैप्चर के चक्कर में। इज इट ट्रू? यस, हाँ सच है, बट दैट्स नॉट, यू कैन पुट अ डेट ऑन द रैप्चर। पर रैप्चर के लिए आप एक तारीख ठान नहीं Third सकते one. हैं। तीसरा, Write it down, demonic wisdom, and we close. शैतानी बुद्धि। Sub, everyone say demonic wisdom. शैतानी बुद्धि। What is this demonic wisdom? Now, please understand this. There is a wisdom which is very, very dangerous, and it is demonic wisdom. और एक ऐसी बुद्धि है जो बहुत ज्यादा खतरनाक है, और वो शैतानी बुद्धि है। Write it down. लिख लीजिए, Please write it down. कृपया लिख लीजिए। Pastor, how to recognize what is this demonic wisdom? और पास्टर कैसे हम पहचान सकते हैं कि ये शैतानी बुद्धि कैसी है? James 3:15, and it will shock you. याकूब It will shock 3:15, आप इससे हैरान हो This जाएंगे। wisdom does not descend from above, but is earthly, sensual, and demonic. Everyone say demonic. और ये जो बुद्धि या ज्ञान Very है, dangerous. Listen to me. All the leaders, you have to listen to this. सभी लीडर्स को सुनना है। Everyone say demonic. और कहिए शैतानी। बहुत ही खतरनाक wisdom. पास्टर अब तो wisdom क्यों बोल रहा है इसको? ये wisdom है. और दिस ऑल्सो इज सुनिए अ इस विजडम।
How to this thing? Write it down. First one. और सबसे There are पहला- 4 things you need to understand. और 4 बातें हैं जो शैतानी बुद्धि को लेकर हमें समझनी है। It imitates wisdom. और वो असली बुद्धि की नकल करने की कोशिश करता है। 2, दूसरा, it operates through deception. और ये भ्रम या धोखे के जरिए कार्य करता है। 3, तीसरा, it promotes rebellion against God. और इस बुद्धि से हम परमेश्वर का बलवा या विरोध करते हैं। And 4th, चौथा, it will always result in pride and ambition. ऐसी बुद्धि हमेशा आपके मन में घमंड और अहंकार लेकर आएगा। Write it down. लिख लीजिए। पास्टर मुझे एक तरीका बताओ जैसे मैं डिमोनिक विजडम मतलब ये नहीं किसी ने आपके घर के सामने कुछ करके नींबू फेंक दिया। कितने लोग सुन रहे हैं मैं क्या कह रहा हूं? वो उसकी बात नहीं कर रहा हूं मैं, वो तो जादू टोना है। प्लीज यहां देखिए और मैं खत्म कर रहा हूं इस वक्त। इधर देखिए। इज दिस ब्लेसिंग यू दिस मॉर्निंग? क्या आप इससे सो फर्स्ट वी आशीर्वादित हो सॉ रहे विजडम ऑफ गॉड, तो पहला हमने देखा परमेश्वर की बुद्धि, सेकंड वी सॉ ह्यूमन विजडम, दूसरा हमने देखा इंसानी बुद्धि, एंड थर्ड वन is demonic wisdom. और तीसरा है शैतानी बुद्धि। The first thing we see, write it down please. और लिख लीजिए कृपया। Now homework for you. First instance we see the demonic wisdom is in the Garden of Eden. और शैतानी बुद्धि का पहला उदाहरण जो हम देखते हैं कि वो अदन की वाटिका में है। Hello. Yes. Man has having authorities. और इंसान के पास पूरा अधिकार है। उसके पास पूरी सत्ता है, पूरा सब कुछ है। अबीश, now the devil comes in an angel form. और अब शैतान आता है स्वर्गदूत के रूप में। Hello. He tells the woman, और वो स्त्री से कहता है, woman, स्त्री, see this fruit is there ना? और ये देखिए ये फल को, It looks beautiful. ये दिखने में अच्छा है। Actually, सच में if you eat of it, अगर आप एक फल को खाएं, you will become like God. तुम परमेश्वर जैसी बन जाओगी। Say it everyone. सभी लोग कहिए, Demonic wisdom शैतानी बुद्धि, promotes rebellion against God. शैतानी बुद्धि हमेशा परमेश्वर का विरोध करना हमें सिखाती है। बोले हवा, परमेश्वर ने ये तेरे से छुपा कर रखा है क्योंकि नहीं तो तू परमेश्वर जैसा बन जाएगी। खा ले बेटा, खा ले, तू परमेश्वर जैसा बन जाएगी। लेकिन अचरज की ये बात थी कि हवा परमेश्वर की बेटी थी और परमेश्वर जैसी ही थी। Eve already was like God because she was a daughter of God. Luke chapter 4. लूका 2। Demonic wisdom will promote rebellion against God. और शैतानी प्लीज ध्यान से सुने। हमेशा आपको परमेश्वर का विरोध करना सिखाएगी। Are you listening? क्या आप सुन रहे हैं? बोले खा ले बेटा, खा ले। तो हवा ने बोला कि नहीं भाई, हम नहीं खा सकते Eve said we क्योंकि cannot eat. परमेश्वर ने बोला है सब कुछ खा सकते हैं लेकिन इसको छूना भी नहीं। शैतान ने कहा क्या परमेश्वर ने ऐसा कहा है? And then the devil asked, has the Lord really said so? हाँ यार, परमेश्वर ने ऐसा कहा है क्या? And then she started thinking and searching, did the Lord It will really say bring so? doubt. आपके मन You में वो think शक you got लेकर an आएगा। insight. It will bring doubt against the very word God spoke. आपको लगता है कि आपको किसी चीज को लेकर समझ प्राप्त हुई है, पर ऐसा जो ज्ञान और बुद्धि है वो आपके मन में वचन को लेकर शंका लेकर आएगा। It mimics insight. आप सोच रहे कि आपने बहुत बड़ा रेवलेशन निकाला। रेवलेशन नहीं निकाला सर, आप ऑलरेडी कंफ्यूजन में आ गए। अभी भी आप कंफ्यूज हो गए। कुछ कहां से इंटरनेट से कुछ कचरा आपने देख लिया, ओ भाई साहब ने आपको आधा बताया और आप ABCD पढ़ रहे हैं और आप कल किताब लिखने की सोच रहे हैं। जाने दो। 1-2 महीने में पहले बाइबल खोले, किसी ने आपको दिया बाइबल, आपने खोला बाइबल, पढ़ रहे हैं बाइबल, और आज आप सोच रहे हैं कि चलो मैं किताब लिखता हूं। चलो, क्योंकि आप संसार में थोड़ा सा कुछ कर लिए तो सोचते हैं कि प्रभु के राज्य में भी कर सकते हैं। नहीं सर, ऐसा नहीं होता है। It doesn't work like this. ऐसा होता तो फिर बिल क्लिंटन बिशप नहीं बनते। It mimics insight. और वो परमेश्वर की बुद्धि की It causes you to doubt the very word of God. और परमेश्वर के वचन पर वो आपके मन में शक डालता है। Somebody say, I received this और word. कोई कहे मैं इस वचन को ग्रहण करता Are you हूँ। listening right now? क्या आप सुन रहे Then हैं? what Eve does? और फिर हवा ने क्या किया? Eve takes the fruit और हवा वो फल लेती है and it says, wow, और वो कहती है कि हाँ कितना अच्छा Me? है, मैं like God. मैं परमेश्वर जैसी It will look बनूंगी। so cool on Instagram. और इंस्टाग्राम पे कितना कूल दिखेगा। Jesus, I can see myself. और मैं खुद को 1 सोच सकती हूँ million कैसे views. दिखूंगी। Pride. घमंड आ जाता है। And I will give it to my husband. और मैं ये फल अपने पति को भी दूंगी। And that fool, that guy will also eat. और वो उसे भी लालसा में डालती है, वो भी खाएगा। And together, और मिलकर we will start a fruit company. हम फल की कंपनी शुरू करेंगे। परमेश्वर जैसा बनने वाला फल
खाओ और बन जाओ आज के परमेश्वर। नहीं नहीं क्या एडवर्टाइजमेंट भाई, प्राइड एंड एम्बिशन, pride and ambition, it will bring pride and ambition in your life. आपके अंदर वो घमंड और बुरी लालसा लेकर That's what happens in the church. और यही तो कलीसिया में होता है। Are you listening right now? क्या आप सुन You रहे are हैं called to कलीसिया? preach. You're not called to worship, but the preachers want to become the worshiper wants to become the preacher. प्रचारक को आराधना करने वाला बनना है, आराधना करने वाले को प्रचार करना है। Stay in your call. और अपनी बुलाहट में बने रहिए। Can I preach the word? Yes, you can preach the word. Everybody is an evangelist, but not everybody is Reinhard Bonnke the evangelist. और हर कोई सुवार्ता सुना सकता है, पर हर कोई रेनाल्ड बॉन्की जैसा सुवार्ता उसको ही नहीं क्यों सुना सकता। देता तुम? उसको ही क्यों? अरे उसको दिया तो कितने समझ रहे मैं क्या कह रहा हूं? सब जन बोलो अपनी बुलाहट में चल। Walk in your own calling. नहीं जोर से बोल, जोर से बोल। See this. This is demonic wisdom. और ये शैतानी बुद्धि है। This is, तेरे को गाना नहीं दिया, तेरे को एक ही दिया, उसको दो क्यों मिला? तेरे घर पे लेके जाके गाने बोल उसको। This is how it promotes rebellion. Anybody tries to put you like this. अगर ऐसा ही बातें करके तेरे माँ ने तेरे को सबके सामने डांटा, अकेले में बोलना चाहिए था। शाने वो तेरी माँ है। तेरे बाप ने ऐसा बोला, तेरे फ्रेंड्स के सामने बोला। फ्रेंड्स के सामने बोला तो क्या हो, तेरा वो बाप है विद अ कैपिटल बी। बिग बी मतलब बाप, नॉट अमिताभ बच्चन। Put it on Twitter, man. Big B means not बच्चन, बाप। Yes, ठीक से नहीं बोला। I'm telling you, I'll give you stuff. Big B is not Bachchan, it is Baap. Somebody say amen. Amen. If your father rebukes you, no problem. He can make a mistake. And when you become a father, mother, you will also make mistakes. Don't worry. अगर आपके पिताजी आपको डांटते तो ठीक है, वो भी गलतियां कर सकते हैं। एक दिन जब आप किसी के माँ और बाप बनेंगे, आप भी गलतियां It करेंगे। promotes rebellion because the family is a unit of God. और वो perfect नहीं है. Family mistakes होती है family में. परिवार में गलतियां होती हैं। हस्बैंड मिस्टेक कर सकता है, वाइफ मिस्टेक कर सकता है। बाहर जाके रूम बंद करो, एक दूसरे को नोचो वेचो, बाद में बाल बना के बोलो फोटो निकालो अभी। उसी कहते हैं फैमिली यार। आपको क्या लगता है 25 साल की रात से जो मनाते हैं ऐसा फोटो वोटो निकाल के, वो लोग क्या वो जो 25 साल के ऐसा फोटो निकालते हैं, ऐसा ब्यूटीफुल दिखते हैं, ऐसा उन लोग कभी झगड़े नहीं क्या? अरे पूरा लफड़ा करके आए लोग। Don't fall for that crap. Don't fall for the world. ऐसे झूठी बातों में मत फंसिए। That's why if you don't like him, Harry's waiting for you at the airport. He's coming with the wings of love. That's nonsense. और ये बेवकूफी की बातें हैं। Sheila loves you. शीला No, तुमसे प्यार करती she's नहीं। after your flat. और वो आपके फ्लैट के पीछे पड़ी है। She'll sue you. And once she gets to you, she will take your visa from you. आपसे भी Is somebody listening to me in the UK? Hallelujah. Demonic wisdom. शैतानी बुद्धि। Everyone said demonic wisdom. शैतानी बुद्धि। Lastly, अभी जो मैं बोलूंगा, मैं आपको हंसा क्यों रहा पता? Listen to me. So that it goes inside of you. ताकि ये वचन What is आपके अंदर demonic जाए। wisdom? How does demonic wisdom come? It mimics insight, operates through deception, promotes rebellion against God, exploits pride and ambition. Now lastly, the greatest form of deception. The devil came to Jesus. Eve को पकड़ा उसको डाल दिया खड्डे में. Now the devil came to Jesus. Look at अब somebody and say, the शैतान devil यीशु के came to पास आया। Jesus. The devil came to Jesus. शैतान यीशु के पास आया। Now watch this. और अब देखिए, And then he uses demonic wisdom. Everyone say demonic wisdom. वो शैतानी बुद्धि का इस्तेमाल करता अभी जो है। मैं बोल रहा हूं उसे लिख कर रखो, क्योंकि तुम्हारी जान बच जाएगी। प्लीज, ये मेरी जान भी बचा दिया। मैं आपको बताता हूं। The greatest deception. सबसे बड़ा What is the धोखा, first temptation? सबसे जो पहला परीक्षा थी वो क्या थी? He says, if you are the son of God, तू अभी 30 दिन हो गए, अगर तू सच में प्रभु का दास है, तो अब तक प्रभु प्रकट होने चाहिए थे।
इसको अभी ये स्टोन्स को तू ब्रेड में बना. कि पत्थर को रोटी में बदल दे. कम ऑन नाउ. और प्रभु कहता है लोक जे आहेत ते फक्त भाकरीवर न जगणे परमेश्वराच्या मुखातून निघालेल्या हर एक वचनावर जगणार आहेत. हालेलुया. That man shall not live on bread alone, Come but on, on every word hallelujah. that comes out of the Father's mouth. जीसस पास. बाजू वाले को तू भी पास. पास. कम ऑन. हालेलुया. Hallelujah. सेकंड बोले ठीक है ये बहुत शाना आदमी है. ओके मलाड में आया है. ओके. Then devil takes Jesus to the mountain. और फिर शैतान यीशु को पर्वत की ऊंचाई पर लेकर जाता है. बोले देख मलाड में कितने सब फ्लैट्स हैं. 3 bedroom 4 bedroom. कोई गोराई फेसिंग है, कोई किधर फेसिंग है. तू सिर्फ मेरे सामने झुकेगा Just bow down before me. तो ये 3-4 फ्लैट तेरे नाम पे. जीसस को बोला ऐसा, आपको नहीं बोला. Praise the Lord. Praise the Lord. I said praise the Lord. Praise the Lord. तो जीसस ने बोला it is written. लिखा है. It is written लिखा है that you shall worship the Lord your God. कि तुम सिर्फ अपने प्रभु परमेश्वर की मेरे पास अभी सेवा नौकरी करना, नहीं उसकी है, आराधना मेरे करना. पास तंगी में चल रहा हूं, लेकिन मैं झुकूंगा नहीं. Amen. 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 आप क्यों चिल्ला रहे हैं भाई लोग? मैं यीशु से बात कर रहा था. बोले मैं तंगी में चल रहा हूं, थोड़ा सा प्रॉब्लम है. हाँ तंगी में चल रहा है, लेकिन मैं झुकूंगा नहीं. I will क्योंकि not सिर्फ bow down. वचन में लिखा है तेरे सामने दंडवत नहीं करूंगा, परमेश्वर के सामने दंडवत करूंगा. Amen. बोले मलाड वाले पास, आई मीन जेरूसलम वाले पास. somebody say amen right now. Amen. 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 Oh, you are on the fire now. Hallelujah. Now comes the greatest test. और सबसे बड़ी परीक्षा आती है. बाजू वाले को बोले greatest test. सबसे बड़ी परीक्षा. Demonic wisdom शैतानी stage. बुद्धि. Now ये बोल रहा है बहुत रिटर्न कर रहा है. बाजू वाले को बोल बहुत रिटर्न बोल रहा है. तू बहुत वर्ड ऑफ गॉड चिल्ला रहा है. तेरे हाथ में बाइबल भी देख रहा हूं मैं. Now the devil says, और फिर शैतान कहता है. sister listen to this. ध्यान Brother से listen to सुनिए. this. Everyone said demonic wisdom. शैतानी बुद्धि. Now he says, और अब वो कहते till हैं. now Jesus was saying written. और अब तक यीशु कह रहे थे कि लिखा है. Listen to this, Ellen. Don't miss it. अभी शैतान बोलता है Now the devil says, it is written. लिखा है. जब शैतान वर्ड ऑफ गॉड कोट करने लगेगा, When Satan tries to quote the word of God, वो सबसे डेंजरस है. it's a very dangerous thing. कितने लोग सुन रहे हैं मैं क्या कह रहा हूं? जब शैतान वर्ड ऑफ गॉड को कोट करने लगेगा, वो बोलता है बेटा तू बहुत रिटर्न कर रहा है. मुझे पहली बार तूने पछाड़ दिया, दूसरी बार तूने पछाड़ दिया, अभी तीसरी बार मैं तुझे तेरा ही डोज तेरे को खिलाता हूं मैं. तो बोलता है इट इज रिटर्न. वो कहता है लिखा है. अगर तू परमेश्वर का पुत्र है, If you are the son of God, and if you jump, अगर तू यहाँ से छलांग लगाए, angels will come and guard you. तो स्वर्गदूत आकर तुझे बचा लेंगे. उसने Psalm 91 कोट किया. और भजन संहिता 91 का वचन It is written, his angels he shall give his angels charge over you and they shall pick you up. लिखा है कि नहीं? और उसने कहा वचन कहता है कि अपने स्वर्गदूतों को भेजेगा लिखा है कि और वो नहीं? तुम्हें पकड़ेंगे. तो फिर यीशु ने छलांग मारनी चाहिए था ना, Yes. क्योंकि लिखा है ना. Come on man. Yes. I said come on. Look at somebody and say it is written. और किसी को देख के कहे कि It लिखा is है. true. ये सच है. But then you should know, understand what is really true and rightly dividing the word. परमेश्वर के वचन का सही तरीके से विभाजन करना. This is where many believers fall. और यहीं पे बहुत सारे विश्वासु गिर जाते Because हैं. it is written. क्योंकि तो लिखा है. It is written. ये भी वचन And है. it is written. वो भी वचन है. If anybody asks you, you say, see, it is written. This is that demonic wisdom. और ये शैतानी बुद्धि है. This is this demonic wisdom. और ये शैतानी बुद्धि है. It happened in the Garden of Eden. और अदन की वाटिका में ऐसा हुआ. It happened here also with Jesus. और यहाँ पे यीशु के साथ भी यही हुआ. It happened with the first Adam. और पहले आदम से ये परीक्षा हुई. It happened with the last Adam. और आखिरी आदम के साथ And I भी ये prophesy परीक्षा it will हुई. not happen to you. और मैं भविष्यवाणी करता हूँ आपके साथ ऐसा नहीं होगा. Somebody say, I receive this word. और कोई कहे मैं वचन को ग्रहण करता The हूँ. greatest deception comes through the word. और सबसे बड़ा धोखा वचन के जरिए आता है. That's why Paul wrote, इसलिए पौलुस कहता है if me, मेरे साथ, forget about me. मेरे बारे में भूल He says, जाइए. even if an angel of light comes and preaches another gospel, और कहता है कि प्रकाश का दूत भी आकर अगर कोई और शुभ वर्तमान का प्रचार करे cursed is he. तो वो श्रापित है. Anathema, hallelujah.
Are you listening, church? क्या आप सुन रहे हैं कलीसिया? Paul used such strong language. और पौलुस ने इतनी सख्त भाषा का इस्तेमाल किया। Believers, सुनिए इस वक्त। और ध्यान से सुनिए विश्वास। Believers कहां पर फट जाते हैं, पिछाड़ जाते हैं कि वचन के द्वारा उनको घुमाया जाता है। When the word is manipulated and given to you. क्योंकि बिलीवर्स जानते हैं ना कि ये भाई ये सांसारिक है, ये ह्यूमन विजडम है, ये नहीं है, तो उनको क्या शैतान करता है, अच्छा तुम लोग बहुत वर्ड कर रहे हैं ना, वर्ड के थ्रू ही लाता है। पब्लिक जाके जेहोवा विटनेस में क्यों ज्वाइन करती है? वर्ड के थ्रू। How many understand what I'm आप में से saying? कितने लोग को समझ में आ रहा है? I'm talking about believers. मैं विश्वासों की बात कर रहा हूं। Devilish wisdom. शैतानी बुद्धि। Today I pray to God. आज मैं परमेश्वर से प्रार्थना करता हूं। You see people fighting on the internet today. और आप देखिए कि लोग आज इंटरनेट पे लड़ रहे हैं। Church is divided. और कलीसिया आज बिखर गई है। Are they speaking the word? क्या आप वो वचन बोल रहे हैं? Yes. हाँ। But is it right? पर क्या वो सही वचन है? I didn't say anything. मैंने कुछ नहीं कहा। You said it. To take your own brother आप अपने खुद के भाई को लेते हैं and remove all his clothes in front of everyone. और सबके सामने आप उसे शर्मिंदा करते हैं। Come on. Show me. And they use a scripture. और फिर वचन का इस्तेमाल करके कहते Paul हैं says, judge this, that. कि पौलुस कहता है कि What are you उसका न्याय talking? करो। What context? What? Where? Is demonic or ये devilish wisdom. शैतानी बुद्धि है। See, church, godly wisdom, परमेश्वर की human बुद्धि, wisdom, इंसान की बुद्धि, demonic wisdom. शैतानी बुद्धि। Today I've opened these things to you. और आज ये सारी बातों का खुलासा A मैंने आपके सामने complete, किया है powerful teaching for you. और पूरा सामर्थशाली शिक्षा मैं आपके आगे पेश कर रहा हूँ। Today, Pastor, what should I do? और आज पास्टर मुझे फिर क्या करना चाहिए? Everyone watching, is this blessing you, church? क्या आप इससे आशीर्वादित हुए हैं? Today you must say, God, और आज आपसे कहना है प्रभु I have understood मुझे समझ में आ गया है what is water and what is milk, कि Lord. पानी क्या है और दूध क्या है। I will pray for wisdom अब मैं बुद्धि के लिए प्रार्थना करूंगा and God's power will move today. और परमेश्वर का सामर्थ आज कार्य And करेगा। let me tell you today, friends, और आज आपसे कहना चाहता हूँ मेरे दोस्तों, such grace is going to come upon your life. ऐसी कृपा आपके जीवन पर उतरेगी। Today I want, सुनिए, आज तक आपने आंसुओं के साथ प्रार्थना नहीं की है। आज मनुष्य को मत देखिए। Today you must pray to God. और आज आपको परमेश्वर से दिल से प्रार्थना करनी है। Whatever problem you are in, जो भी आपकी परेशानी क्यों ना हो, I give you a notice in Jesus' name. और मैं नोटिस आपको देता हूँ यीशु के नाम में। 10 days 10 दिन you will prophesy 10 दिन की मोहलत that आप भविष्यवाणी करेंगे कि this पास्टर is my testimony. ये मेरी गवाही है Jesus is alive. और यीशु जिंदा है। Hallelujah. Amen. I said hallelujah. Hallelujah. Give Jesus a shout of praise and say hallelujah और right यीशु now. के लिए जोरदार ताली बजाइए और How कहिए many of you are hallelujah। blessed with the word? क्या आप वचन से Hallelujah. आशीर्वादित हुए हैं? Praise the Lord.